Hi everyone. Today we are going to talk about formal organization. What is a formal organization? Formal organization consists of an organization structure which is actually deliberately designed by the top management. So what top management does is it brings out a proper authority, responsibility, accountability relationship and tells its employees to work according to that. Tells the employees to work according to the Scala chain. Tells employees to work according to the chain of command. And in reality, this is based on rules and regulation framed by top management and nobody can break them. Really. So what do you do if you cannot break the formal organization structure? When you want to do little bit of gossip, what do? चुगलखोरी करनी है तब क्या करेंगे? गप्पे मारनी है तब क्या करेंगे? The moment you want to gossip or you want to really talk something about someone, backbiting, so what you do is you simply switch over to informal kind of organization. Why I am giving you this introduction? Because now we are going to talk about both formal and informal organization. Right now I am covering formal organization, but eventually I am going to talk about informal organization also. So just a brief introduction. Now what's an informal organization? Not based on chain of command, no rules, no regulation. It is just to satisfy our social and cultural needs that we need some kind of informal organization. Sometimes you know what happens when we meet somebody and we start talking to that person and we feel that हम बोलते हैं कई बारी हमारी frequency meet हो गई, fine tune हो गया हमारा. That fine tune, that frequency is nothing else but informal organization in the same formal structure, in the same formal organization. तो जब भी कभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जिस जॉब पोजीशन के लिए आप हैं, आपको वो जॉब पोजीशन दी जाती है और आपको बोला जाता है संभालिए अपनी कुर्सी. किस्सा कुर्सी का अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बताया था आपको प्लेसमेंट के लिए. सो द मोमेंट आप अपनी कुर्सी लेते हैं, द मोमेंट यू टेक योर चेयर एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड यू गो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉलोइंग अ स्काला चेन, formal organization takes place immediately. Now, why organization needs informal organization along with formal organization? Organization doesn't need. People need informal organization because people are bound to get tired despite of having many breaks. We need somebody to relax with, or we need somebody to actually talk or discuss things which are happening around. And it's a very natural phenomena. I think if most of the teachers are watching this, then they would relate that in the staff room what we all do usually. So same thing goes in formal organization is very important with the formal organization. अब बोलना नहीं चाहती हूँ, informal organization बताऊंगी कि हम क्या करते हैं. Okay, let's start. So formal organization is a system of well-defined jobs, each bearing a definite measure of authority. Authority का one word meaning क्या है? Power. Responsibility, one word meaning क्या है? Duty. And accountability, one word meaning क्या है? इसका one word meaning है answerability. Now this definition has been given by Louis A. Allen. Okay, I think I need to have my concept clear, but yes, it's been given by Louis Allen. What it says, another definition. Formal organization refers to the organization structure which is designed by the management. बोला ना सोची समझी साजिश है. To accomplish a particular task. काम करवाने के लिए सोची समझी साजिश जब की जाती है तो it is known as nothing else but formal organization. Now, here are some features. Actually, in your book, features are again given without the headings. And I have given them headings so that it is a little clearer to you, because even advantages and disadvantages are without headings. But why these have given heading is it's easier for you to learn. So starting with the first feature, reporting relationship. Yes, once superior subordinate relationship is created, right? Superior subordinate relationship is created. There is a clarity of role. People know superior is going to order. They are going to give responsibility to the subordinate, and subordinate knows that he has to perform and is answerable to his superior for the same. So it specifies the relationship among various job positions and the nature of their interaction and interrelation also. This clarifies who has to report to whom. Of course, yes, subordinate has to report to his superior. Subordinate will report to his superior, whosoever it is.
Next, departmental coordination. Now, when we talk about formal organization, there are usually 4 types of department: purchase, finance, HR, marketing and sales. All need to coordinate, and when these 4 departments, they work together, they coordinate, it's easier to achieve the goals of the organization. So efforts of various departments are coordinated, interlinked and integrated through the formal organization. कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ बाइंडिंग फोर्स. ठीक है, वॉलंटरी एक्शन नहीं है, बाइंडिंग फोर्स है. ठीक है, किस लिए चाहिए? टॉप मैनेजमेंट चाहती है कि हम गोल्स अचीव करें, इसलिए वो हम सबको इकट्ठा करके अलग अलग काम देके बोलते हैं भाई मिलके काम करो. ये सेम चीज है डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन. और स्मूथ फंक्शनिंग, इट इज डिलिबरेटली डिजाइन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट. आ गई सोची समझी साजिश टू फैसिलिटेट द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. नहीं करते भाई, हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट नहीं करते, हम लोगों को जॉब नहीं बताते किसने क्या करना है. जिसका मन है वो काम कर ले, सब आसान वाला काम नहीं है, डिफिकल्ट काम हर कोई छोड़ देगा. एंड व्हाट विल एंड अप? 2 people will fight for the same position, same job, and everybody would like to be at the top level. What will we do? There would be a chaos in the organization. Don't want. Top management decides everybody's role. Top management decides who's going to work where, how departments are going to coordinate, what work is required to be done where. Now, work-based. It places more emphasis on work to be performed than interpersonal relationship. बिल्कुल. अभी मैंने बताया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सोशल कल्चरल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपको अपनी फ्रीक्वेंसी जिनके साथ फाइन ट्यून होती है उनसे बात करने के लिए. फॉर्मल स्ट्रक्चर इस चीज के लिए नहीं है. नो, वी डोंट टॉक अबाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन फॉर्मल स्ट्रक्चर और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Why? Because we are doing well-defined roles given by the top management, or we are following the well-defined rules, or we are following the unity of command, chain of command, or we are following the Scarlet chain. Advantages. It's easier to fix responsibilities because we already know who's going to report to whom. कौन superior, कौन subordinate. There is no ambiguity. Ambiguity का मैंने आपको ambiguity का meaning बताया हुआ है. It means doubt in role. हेल्थ इन अवॉइडिंग डुप्लीकेशन. 2 जने सेम काम नहीं करते भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा कि आपकी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, आप सब अपना अपना जॉब करेंगे, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने अपना जॉब किया है, उसने आपको काम दिया है आपके हिसाब से, और आप जैसे बाकी लोगों को भी काम दिया. सो नो डुप्लीकेशन. यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू चेन ऑफ कमांड. वन सुपीरियर, मेनी सबऑर्डिनेट्स. आ गया यहाँ पर, ये भाई साहब यहाँ पर है, इनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन्ड. राइट? इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स बाय प्रोवाइडिंग फ्रेमवर्क एंड रोल. फ्रेमवर्क क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. रोल क्या होगा? आपकी जॉब पोजीशन. दोनों पता है, आप अपना काम करेंगे. इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन एज देयर आर स्पेसिफिक रूल्स एंड एम्प्लॉयज हैव टू बिहेव विद इन द बाउंड्रीज. यस, स्टेबिलिटी. If I break any rule of my organization, I'm pulled for that, and I think everybody would be treated the same way. So we have to follow the rules and we have to behave in that particular boundary. So organization remains very stable. People know what is expected out of them as an employee, and they know how they're supposed to report to their superior. Usually in a formal structure, the kind of conflict does not happen because superior and subordinate relationship is very, very clear. Next we come to disadvantages. Now, leads to procedural delays. You can take this as your heading. Why it takes to procedural delays? Chain of command. अरे भाई टॉप ने कोई बात मिडिल को बताई, मिडिल ने कोई बात लोअर को बताई, लोअर ने फिर जाके अपने वर्कर्स को बताई, हो गया ना डिले. सिंपल. So, due to establish chain of command, Scarlet chain increases the time taken for decision making. Do you remember we made the diagram of Scarlet chain जहाँ पर A leader था, B, C, D, E, F, G, और यहाँ पर gang plan था. So हमने इसकी बात की थी. And Scarlet chain का diagram था सेकंड चैप्टर का. क्या है? अगर कोई बात करनी है तो D को C को बताना पड़ेगा, C को B को, B को A को A, E को E, F को फिर G तक पहुँचेगा. इतना लंबा चेन. Poor organizational practices may not provide adequate recognition to creative talent since it does not allow any deviation. Now, lack of creativity. हाँ,
इसकी हेडिंग लिख सकते हैं लैक ऑफ क्रिएटिविटी। और डज नॉट लैक थोड़ा अजीब सा होगा, डज नॉट प्रमोट, ठीक है, डज नॉट प्रमोट क्रिएटिविटी। ट्रू, अगर मैंने अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम दिया है और वो मुझे बहुत क्रिएटिव काम करके दिखाता है, ठीक है, कर दिया, बट मुझे ऑर्गेनाइजेशन का काम पहले चाहिए, क्रिएटिविटी नहीं चाहिए। सो वॉट एवर न्यू यू डू, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर सुपीरियर। समटाइम्स सुपीरियर मे नॉट लाइक इट, थ्रेटन फील करते हैं। So poor organization practices may not provide adequate recognition to creative talent, does not allow any deviation. और moreover, जो सेट रूल्स है ना, आप उससे नया कुछ नहीं कर सकते, कुछ उससे हट के नहीं कर सकते। बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। सारा साल बिजनेस स्टडीज पढ़ाने के लिए हम, या जो ये सब्जेक्ट है, या कोई भी सब्जेक्ट अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए या इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए सारा साल हम सबसे पहले किस चीज़ पे बेस करते हैं अपनी थॉट प्रोसेस को? पहला सिलेबस, दूसरा लेसन प्लान्स। डू वी डिविएट फ्रॉम दैट? वी डोंट। कोई कितना भी क्रिएटिव हो जाए, कोई रोल प्ले करा रहा है, सो वील ऑलवेज से व्हाई शी वेस्ट टाइम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट इंटरेस्टेड इफ समबडी डज समथिंग न्यू। एज एम्प्लॉइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड। तो जब हम इंटरेस्टेड नहीं होते, बॉसेस तो डबल इंटरेस्टेड नहीं होते, काम करना पड़े, चलो जी आगे बढ़ो, राइट? ऑलराइट, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप in an enterprise as it places more emphasis on structure and work. Hence, a formal organization does not provide a complete picture of how an organization works. Less emphasis on relationships. Okay, we can keep this as a heading. यहाँ पर procedural delay है. Yes, because we are talking about वो होता है ना entertainment, entertainment, entertainment. यहाँ से 3 words हैं, work, वर्क, वर्क। भाई काम से मतलब रखो और कुछ नहीं करना है। कोई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में हम इंटरेस्टेड नहीं है। आपका किसी के साथ क्या रिलेशनशिप है, एज अ सुपीरियर सबॉर्डिनेट आप अपने कुलीग के साथ कैसे बिहेव करते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोऑर्डिनेटेड काम करना है, मेरे गोल्स अचीव करने हैं, एंड दैट्स द एंड टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स। सो वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट? वर्क। We do not concentrate on the relationship, है ना? relationships के लिए informal organization पढ़ेंगे अभी। आओ बहन चुगली करें, आओ बहन चुगली करें, अभी हुई थी ना बात हमारी। सेम चीज, informal organization, social, cultural needs, interpersonal needs, fine tuning, sense of belongingness, जिनसे frequency मिलती है। In an organization, people are working maybe at the same level, departmental heads, रोज काम करते हैं, संडे को क्रिकेट मैच खेलते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दे गो आउट फॉर अ मूवी विद द फैमिली, ऑल ऑफ देम विद द फैमिलीज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दे मीट इन द क्राफ्ट एरिया एवरी डे टू हैव अ कप ऑफ कॉफी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दे डिस्कस पर्सनल थिंग्स। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फाइन ट्यूनिंग आउट देयर। स्कूल में सपोज करो आपको किसी बात पे डांट पड़ गई, अब आपको क्रिब करना है, तो आप किसके ऊपर क्रिब करोगे? चीज़ें तो तोड़ना शुरू कर नहीं सकते एज अ स्टूडेंट, या एज अ टीचर आपके प्रिंसिपल ने आपको डांट दिया, बॉस है आपके तो उन्होंने डांट दिया, तो आप क्रिप तो कर नहीं सकते। तो आप क्या करते हो? अपने फ्रेंड को आकर बोलते, पता नहीं यार मेरे से हमेशा गलती क्यों जाती है, वॉट एवर यू फील लाइक टॉकिंग, यू नो। सो दैट इमीडिएट आउटबर्स्ट जो होता है वो उनसे होता है जिनसे आपकी फाइन ट्यूनिंग हो। क्या है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, विच इज़ वेरी वेरी एसेंशियल to make the organization work, because people need to ward off their negativities and work in sync for the organization. Let's come and see the definition. Interaction among people at work gives rise to a network of social relationship among employees called the informal organization. This is according to Chester Bernard. I hope this is correct. Or an informal organization is aggregate of interpersonal relationship without any conscious purpose. सोची समझी साजिश नहीं है, बस ठीक लगा बात कर ली। So no conscious efforts. Deliberate नहीं है, टॉप मैनेजमेंट ने नहीं बनाया, but which may contribute to the joint results of the people working together as well as the organization. Features, again. Features do not have headings. I've given you headings out here just to make it easier for you and segregate it from the advantages, which again does not have any headings. Origin. An informal organization originates from within the formal organization. I told you it originates from within the formal organization. पहले formal organization आएगी
और फिर आप आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो इन्फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। बिहेवियर पैटर्न, द स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम द ग्रुप नॉर्म्स रादर देन ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स। ऑफिशियली लेड डाउन रूल्स एंड रेगुलेशन बाकी लोगों के लिए ऑफिशियली फॉलो करने के लिए होते हैं जब बॉसेस सामने होते हैं। अच्छा, कभी भी आपने अपने बेस्ट फ्रेंड को, मान लीजिए आपकी बेस्ट फ्रेंड का नाम रीटा है, तो आपने क्या बुलाया, हाय मिस रीटा सिंघानिया, हाउ आर यू, आई एम मिसेस पंकज प्रिया, आई होप एवरीथिंग इज गुड एट योर एंड, डू यू टॉक लाइक दैट? और रीटा वासुन, दिस इज हाउ यू टॉक, पर्सनल इंटरेक्शन है भाई। ओके, कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, independent channels of communication without specified direction of flow of information are developed by group members। और अपनी मर्जी का चैनल जिससे मर्जी आप बात करो, टॉप मिडिल लोअर, आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी से भी दोस्ती हो सकती है, आप किसी से भी फाइन ट्यून कर सकते हो। सो इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्री फ्लो डायरेक्शन है, जहाँ मर्जी किसी से बात करो, लेवल्स आर नॉट द क्राइटेरिया, यू कैन टॉक टू एनीवन एनीवेयर। ओके, क्रिएशन, इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की जाती है, सोची समझी साजिश है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोची समझी साजिश नहीं है, नॉट एट ऑल। एडवांटेजेस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फीडबैक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, कोई फॉर्मल चेन ऑफ कमांड फॉलो करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रोसीजरल डिलेज नहीं है। मैंने आपको कोई बात बताई, आपने उस चीज का मुझे इमीडिएट फीडबैक दे दिया, दैट्स एज सिंपल एज दैट, दिस इज द थिंग रिक्वायर्ड। सो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन helps to fulfill social cultural needs of people, like-minded people interact with, which gives them sense of belongingness. Yeah, they feel they belong to each other, they feel happy with each other, and it's very important। कहाँ ward off करोगे, सारी बात मैं बार बार कह रही हूँ, it is very important to have an informal organization। और अगर आप थोड़े से भी शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो गुस्सा वार्ड ऑफ करने के लिए दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकोगे, किसी का गुस्सा किसी भी निकल जाएगा। हाँ, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इनएडिक्वेसीज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी कवर्ड हियर। यस, आपने कोई प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं, कोई भी तरह की प्लान्स एंड पॉलिसीज हैं, आपने किसी एम्प्लॉय को बतानी है, तो अगर आपने सारे एम्प्लॉयज को बतानी है, आप एक एम्प्लॉय को बताइए और बोलिए कि वी आर प्लानिंग टू डू दिस, like for example we are planning to give you increment this year and we are going to give you raise by, मान लीजिए पहले आपकी 50,000 सैलरी है, बट 10,000 और 15,000 तो आपकी 65,000 रहेगी। वो एम्प्लॉय खुद भी खुश होएगा, 4 लोगों को बताएगा, और आप एम्प्लॉय से फीडबैक मांगेंगे ना, लोगों का क्या कहना है, तो लोग द पीपल आर वेरी हैप्पी। एक 1 और 2 पीपल बताए वो सेइंग कि थोड़ा और रेज हो जाता तो अच्छा था, फीडबैक मिल गया ना, इनफॉर्मल मिला। फॉर्मली चाहे आप सैलरी डिडक्ट करो, चाहे रेज करो, कुछ भी करो, यू गेट इमीडिएटली कम टू नो द रिएक्शन ऑफ पीपल। यू वांट टू मेक न्यू प्लान, आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का टाइम चेंज करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू इंक्लूड न्यू डिपार्टमेंट, न्यू मैनेजर, एनीथिंग। Once you talk informally to the employee, it becomes easier to put that forward and come to know about other people's reaction. Alright, disadvantage. When an informal organization spreads rumor, it becomes disruption force and which goes against the interest of formal organization. Disruptive force, rumors, अफवाह, of course yes, गप्पे अपने दोस्तों में हो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो, नॉट अ गुड आइडिया। अब आजकल इतनी ज़्यादा र्यूमर्स है, लॉकडाउन एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, र्यूमर्स है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होंगी, कौन सी नहीं होंगी, इतनी र्यूमर्स है। लेट पीपल डिसाइड एंड लेट्स कम टू नो द फाइनल रिजल्ट ना। कोई बोल रहा है स्पेकुलेशन है जी, स्कूल्स का जो सेशन होगा सितंबर टू मार्च होगा, कोई कह रहा है सेशन होगा ही नहीं, 30% सिलेबस करो। भाई वेट करो ना, क्यों? ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी हो सकती है, CBSE माइट टेक एनी एक्शन अगेंस्ट दिस, डोंट डू इट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। The management may not be successful in implementing changes if the informal organization opposes them. This restricts growth. Yes. अब कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट may not be successful in implementing changes if informal organization opposes them. मतलब क्या, अगर लोग धरने पे उतर जाएं कि आपने ये पॉलिसी बनाई, ये पॉलिसी ठीक नहीं है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसको पूरा नहीं कर सकती। दे कैन नॉट अप्लाई इट, दे कैन नॉट इम्प्लीमेंट इट, दे कैन नॉट टेक इट फॉरवर्ड। इट्स नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज पीपल आर अपोजिंग। जिन्होंने काम करना है वो अपोज कर रहे हैं, चाहे इनफॉर्मली अपोज कर रहे हैं। आप उनसे फॉर्मली जबरदस्ती काम कराओ, एक दिन आएंगे, दूसरे दिन नहीं आएंगे, कहीं हम सैलरी कटवाने को तैयार है, बट ये तरीका काम करने का गलत है, क्या कर लो? फिर अल्टीमेटली टीम वर्क तो नहीं हो पाएगा ना, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा।
It pressurizes members to conform to group expectation. This can be harmful to the organization if the norms set by group members are against the organization structure. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इनफॉर्मल ग्रुप्स जो क्रिएट होते हैं उसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं और उनका जो लीडर होता है सिलेक्टेड बाय देम फॉर देयर ओन पर्पस, जो भी ग्रुप लीडर होता है वो इतनी अथॉरिटी गेन कर लेता है, इतनी पावर गेन कर लेता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट भी कई बार बात कर सकता है, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया। आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल आपको रोज़मर्रा की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिख जाएगा। कई बार आप देखेंगे कि एक साइंस डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एक साइंस का टीचर है जिसकी बात हमेशा मानी जाती है, तो आप कहेंगे कि वाई इज एक्सर्टिंग अथॉरिटी, एवरीबडी लिसन्स टू हिम, सारे के सारे लोग उसको क्यों सुनते हैं, क्या ज़रूरत है, अपनी थॉट प्रोसेस क्यों नहीं प्रेजेंट करते। दिनों ही सीनियर इनफॉर्मल ग्रुप है, सब इकट्ठे मिलते उठते बैठते हैं, उसको सीनियरिटी की बेसिस पे ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है कि ऐसे में ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म से ज़्यादा ग्रुप नॉर्म्स मैटर कर जाते हैं, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार इसको ग्रुपिज्म भी कहा जाता है एंड दैट पोजेज अ प्रॉब्लम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, enough for today. So we'll catch up with the differences as well as relationship between formal and informal organization in the next video. Bye.